السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں۔ کیا آپ نے کبھی دل سے استغفار کیا ہے؟ کیا آپ نے رات کی تنہائی میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگی ہے؟ لیکن پھر بھی دل میں ایک سوال رہتا ہو کہ کیا میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کی توبہ قبول کرتا ہے تو وہ آسمان سے کوئی اعلان نہیں کرواتا، بلکہ وہ کچھ خاموش نشانیاں چھوڑ دیتا ہے، ایسی نشانیاں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن ایک بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ آج ہم انہی 5 خاموش نشانیوں کی بات کریں گے جو اس بات کا پروف ہے کہ اللہ نے شاید آپ کو معاف کر دیا ہو۔ تو ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ان نشانیوں میں اپنا جواب مل جائے۔ نمبر 1، دل کا نرم ہو جانا۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو سب سے پہلی خاموش نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اندر کوئی برف پگھل رہی ہو، جیسے کوئی بوجھ تھا جو اب ہلکا ہو رہا ہے۔ پہلے جو دل سخت تھا، جس پر گناہوں کی گرد جم گئی تھی، وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کانپ جاتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت سنے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کسی مظلوم کو دیکھے تو دل میں درد جاگتا ہے، کوئی نیکی کا پیغام آئے تو دل بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے بھی رب کو راضی کرنا ہے۔ توبہ کوئی لفظوں کا کھیل نہیں، یہ دل کی ایک سچی پکار ہوتی ہے، اور جب بندہ دل سے استغفار کرتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی وہ خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور وہ ہے دل کا نرم ہو جانا۔ پہلے جو گناہ دل کو چھوتے بھی نہیں تھے، اب وہ سوچ کر بھی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو غلط بات سن کر ہنسی آتی تھی، اب وہی بات دل میں چبھنے لگتی ہے۔ یہ کوئی عام تبدیلی نہیں ہے، یہ اس وقت کی علامت ہے جب انسان کا دل گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہونے لگتا ہے، جب دل توبہ کے بعد اللہ کی طرف واپس پلٹنے لگتا ہے۔ یہ وہ نرمی ہے جو انسان کو دوسروں کے دکھ کا احساس سکھاتی ہے۔ وہ اب کسی پر غصہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، کسی کا دل توڑنے سے پہلے رکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر رب کے سامنے جھکنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، پہلے کوئی نماز چھوٹ جائے تو فکر نہیں ہوتی تھی، اب ایک نماز قضا ہو جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ پہلے راتوں میں بے مقصد فون چلتا تھا، اب رات میں رب کو یاد کر کے آنکھ بھیگ جاتی ہے۔ پہلے جو چیزیں دل کو نہیں چھوتی تھیں، اب وہ روح تک اثر کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل اب صرف رب کے لیے دھڑکنا چاہتا ہے۔ معافی مانگنے کے بعد جب دل میں عاجزی آ جائے، جب انسان ہر چھوٹی بات پر خود کو سوال کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ توبہ کا اثر شروع ہو چکا ہے۔ یہ نرم دلی، یہ اندر کا لرز جانا، یہ احساس کا جاگ اٹھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم فرما دیا ہے اور آپ کے دل کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب دل زندہ ہو جائے تو آنکھ بھی نم ہو جاتی ہے، زبان بھی متعطف ہو جاتی ہے، اور زندگی بھی سنورنے لگتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب اللہ کسی بندے کو قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کی حالت بدلتا ہے۔ نہ کوئی آواز آتی ہے، نہ آسمان سے کوئی اعلان ہوتا ہے، بس دل کی زمین پر نرمی کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اور وہی قطرہ نئی زندگی کی شروعات بن جاتا ہے۔ تو اگر آج تمہارا دل کسی بات پر پگھل گیا ہے، کسی کی تکلیف تمہیں خاموش کر گئی ہے، یا تمہارے اندر رب کے سامنے جھکنے کی تڑپ جاگ اٹھی ہے، تو یہ تمہاری توبہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے نفرت ہو جانا۔ توبہ صرف آنکھوں کے آنسو نہیں ہوتی، یہ روح کا انکار ہوتا ہے اس چیز سے جس نے انسان کو رب سے دور کر دیا تھا۔ اور جب اللہ کسی کی سچی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے ہی کیے ہوئے گناہوں کے لیے۔ پہلے جو غلط کام نارمل لگتا تھا، اب وہی کام شرمندہ کر دیتا ہے۔ پہلے جس گناہ میں مزہ آتا تھا، اب اسی کی یاد روح کو جلا دیتی ہے۔ یہ تبدیلی خاموش ہوتی ہے، لیکن بہت گہری ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھی نہیں، مگر آپ کے چہرے سے، آپ کی نظر سے، آپ کی چپ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اندر ٹوٹا ہے، کچھ ایسا تھا جو آپ اب کبھی واپس نہیں چاہتے۔ آپ دل سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ، مجھے واپس اس اندھیرے میں مت لے جانا جس سے تو نے مجھے نکالا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ گناہ کو صرف حرام سمجھ کر نہیں چھوڑتا، بلکہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ گناہ
रब से जुदाई का निशान लगने लगता है। ये नफरत दरअसल मोहब्बत का दूसरा नाम है, रब की मोहब्बत का। जब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ने लगता है तो वो दिल को साफ करने लगता है, और दिल तब तक मुकम्मल साफ नहीं होता जब तक गुनाह से नफरत न हो जाए। अब दिल में वो ख्वाहिश पैदा होती है कि जो वक्त गुनाहों में जाया किया उसे किसी तरह वापस ला सकूं। और सबसे हैरत अंगेज बात यह होती है कि जिन गुनहगारों को पहले आपके दिल में जगह मिली हुई थी, अब उनसे फासला रखना जरूरी लगने लगता है, न घमंड से बल्कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए। ये इस बात की खामोश निशानी है कि आपके इस्तगफार को सिर्फ सुना नहीं गया बल्कि दिल में उतार दिया गया है। और ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक पोशीदा तरबियत होती है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी तौबा में सच्चाई होती है। नंबर 3, नेकी की तरफ कशिश पैदा होना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक दिल चाहा हो कुछ अच्छा कर लें, किसी को माफ कर दें, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दें, या तन्हाई में अल्लाह से सिर्फ 2 लफ्ज बोल दें, या रब मैं बदलना चाहता हूं। ये आम सी फीलिंग नहीं होती, ये उस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके दिल को नेकी की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। कभी किसी को कुरान पढ़ते देखकर दिल में हसरत जागती है कि काश मैं भी ऐसे दिल से तिलावत कर सकूं। कभी मस्जिद से अजान की आवाज आती है और दिल खुद ब खुद कहता है चलो उठते हैं, बस बहुत हो गया। कभी दिल करता है कि कुरान पढ़ूं या कम अज कम सुन ही लूं। कभी दिल करता है कि किसी को स्माइल देकर खुशी बांट लूं या किसी तकलीफ में मुब्तला शख्स के लिए रो लूं। यही है नेकी की तरफ कशिश। ये वो लम्हे हैं जब इंसान दुनिया के शोर से थक कर अपने रब की खामोशी को तलाश करता है। अब दिल गुनाह की तरफ नहीं खींचता बल्कि नेकी के लम्हों को याद करता है। किसी को दुआ दी थी और खुद सुकून मिल गया था, किसी को छुपकर खैरात दी थी और दिल हल्का हो गया था, किसी की गलती माफ की थी और रात की नींद पुरसुकून हो गई थी। ये वो लम्हात होते हैं जहां नफ्स हारने लगता है और रूह जीतने लगती है। पहले जो बातें बेकार लगती थीं, अब वही बातें दिल को सुकून देती हैं। कभी मां की दुआओं में दिल लगता है, कभी किसी रिश्तेदार से सुलह करने को जी चाहता है, कभी बस इतना दिल चाहता है कि अपने रब से कहें मैं अब वो नहीं रहना चाहता जो पहले था। ये नेकी की तरफ कशिश, ये सिर्फ इबादत नहीं, ये एक दिल की हिजरत है, बुराई से अच्छाई की तरफ, गफलत से याद की तरफ। अब वक्त जाया करना बुरा लगने लगता है। अब किसी पर बेवजह गुस्सा आ जाए तो दिल शर्मिंदा हो जाता है। अब गुनाह करने के बाद बहाने नहीं बनते बल्कि दिल कहता है रब के सामने माफी मांगो, वो नाराज ना हो जाए। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके दिल में अपना नूर डाल रहा है। और ये सब किसी एक जेंडर के लिए नहीं होता, ये नूर किसी मां के लिए भी हो सकता है जो बच्चों के साथ साथ इबादत की ख्वाहिश रखती है। ये कशिश किसी नौजवान लड़की में भी पैदा हो सकती है जो दुनिया के शोर से हटकर रब से जुड़ना चाहती है। ये तड़प किसी बेटे में भी हो सकती है जो दिन भर की थकन के बाद सिर्फ ये सोचता है कि काश मैं रात सोने से पहले 2 रकात पढ़ लूं। ये कशिश किसी बुजुर्ग के दिल में भी हो सकती है जिसे लगता है कि अब जिंदगी की असल तैयारी आखिरत की तरफ है। ये नेकी की तलब एक खामोश इनाम है अल्लाह की तरफ से जो तब आता है जब तौबा सच्ची होती है। नंबर 4, तन्हाई में आंसू। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है, जिंदगी चल रही होती है, लोग आस पास होते हैं, दिल भी बजाहिर मुतमईन होता है, मगर फिर अकेलापन एकदम दिल पर दस्तक देता है और आंखों से बेइख्तियार आंसू बह जाता है। न किसी ने कुछ कहा, न कोई तकलीफ याद आई, बस दिल कहता है या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। ये आंसू कोई आम आंसू नहीं होते, ये न शिकवे के होते हैं न दुख के, बल्कि ये वो आंसू होते हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह समझता है। ये वो लम्हा होता है जहां दिल जबान से आगे निकल जाता है, जहां अल्फाज कम पड़ जाते हैं और आंखें दुआ बन जाती हैं। और अक्सर ये आंसू तन्हाई में आते हैं, किसी खामोश कमरे में, सजदे में, रात के आखिरी पहर या दिन के बीच हुजूम में भी, जब कोई हमें देख नहीं रहा होता मगर अल्लाह देख रहा होता है।
ये आंसू उस तौबा की खामोश तस्दीक होते हैं जो जबान से नहीं बल्कि रूह से निकलती है। जब इंसान माजी के गुनाहों को याद करके रोता है, न किसी के डर से, न दुनिया के तानों से, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने रब के साथ ज्यादती की, तो यही रोना अल्लाह को बहुत महबूब होता है। कुरान हमें बताता है, अल्लाह तो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, और जब कोई बंदा छुप के किसी से कुछ कहे बगैर बस अल्लाह के सामने नरम पड़ जाए तो वो आंसू फरिश्ते भी महफूज कर लेते हैं। ये तन्हाई के आंसू बंदे की कमजोरी नहीं बल्कि उसके रब से ताल्लुक की पहचान होते हैं। अब चाहे वो कोई बेटी हो जो सजदे में बस चुपचाप बह रही हो, या कोई बेटा जो रात के कमरे में रोता हो कि या रब मैं थक गया हूं, मुझे वापस अपनी तरफ ले आ, या कोई मां जो अपनी औलाद के लिए रब से रोकर मांगती हो, वो सब आंसू कभी झाया नहीं जाते। यही तो तौबा की चौथी खामोश निशानी है, जब इंसान के दिल में इतनी नरमी आ जाती है कि वो रब के सामने बेआवाज रो लेता है। न किसी से शिकायत, न किसी को इल्जाम, बस अपने रब से कहना, मैं तेरी तरफ पलट आया हूं, देर हो गई मगर दिल सच्चा है। ये आंसू सिर्फ आंख से नहीं बल्कि रूह से निकलते हैं, और वो रब जो दिलों के हाल जानता है उन आंसुओं की सदा को कभी रद्द नहीं करता। नंबर 5, दिल में सुकून का उतर आना। कभी कभी जिंदगी में शोर बहुत होता है, हर तरफ भाग दौड़, जहन में सवालात, दिल में बोझ और रूह में जैसे कोई खालीपन। फिर एक दिन किसी खामोश लम्हे में, किसी दुआ के बाद, किसी सच्चे आंसू के बाद अचानक दिल हल्का लगने लगता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, कोई अंदर का शोर खामोश हो गया हो। किसी अनजानी घुटन की जगह एक नरमी और ताजगी ने ले ली है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह की तरफ से सुकून दिल में उतरता है। ये वो सुकून नहीं जो लग्जरी, शोहरत या ताल्लुकात से आता है। ये वो सुकून है जो सिर्फ इस्तिगफार के जवाब में मिलता है, जब इंसान दिल से माफी मांगता है और रब उसे खामोशी से माफ कर देता है, तो सबसे पहला असर दिल पर आता है। अब दिल वो नहीं रहता जो पहले था। पहले जो चीजें तकलीफ देती थीं, अब उनकी अहमियत कम हो जाती है। पहले जो लोग परेशान करते थे, अब उनके लिए दिल में रहम आ जाता है। पहले जो हालात नाकाबिले बर्दाश्त लगते थे, अब बस एक इम्तिहान लगते हैं। दिल कहता है, सब कुछ मेरे रब के हाथ में है, मुझे बस उससे जुड़े रहना है। ये अंदर का सुकून कहीं से नहीं आता, बल्कि ये सुकून तब आता है जब दिल रब के साथ सुलह कर लेता है। अब नमाज सिर्फ फर्ज नहीं लगती, बल्कि एक मुलाकात लगती है। अब तन्हाई से डर नहीं लगता, बल्कि राहत लगती है, क्योंकि दिल अब किसी इंसान के कंटेंट से नहीं, रब के कनेक्शन से पुरसुकून होता है। यही वो लम्हा है जब इंसान को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वो कब इतना पुरसुकून हो गया। शायद इसलिए कि ये सुकून खामोशी से उतरता है, ना शोर करता है, ना ऐलान, बस दिल के किसी कोने में एक रोशन जगह बना लेता है। यही वो 5वीं खामोश निशानी है कि इस्तिगफार सच्चा था, कबूल हो चुका है और रब ने आपको अपनी रहमत में लपेट लिया है। अगर आज आपका दिल किसी बेजा सुकून को महसूस कर रहा है, अगर आपको किसी चीज के पीछे भागने की चाहत नहीं रही, अगर तन्हाई में भी दिल खौफजदा नहीं, मुतमिन है, तो जान लें ये कोई आम एहसास नहीं, ये इस्तिगफार के रंग का असर है। ये तौबा की वो रोशनी है जो अब आपके दिल में घर बना चुकी है। मेरे नाज़रीन, अगर इन 5 खामोश निशानियों में से कोई एक भी निशानी आपके दिल, जिंदगी या आंखों में नजर आए तो खुश नसीब हैं आप, क्योंकि ये सब अलामतें बताती हैं कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ पलट आएं। वो सुन रहा है और शायद कबूल भी कर चुका है। बस तौबा को थामे रखिए और रब से अपना रिश्ता कभी कमजोर मत होने दीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो किसी एक शख्स तक जरूर पहुंचाइए। शायद किसी की जिंदगी बदल जाए और आपको खामोशी से अज्र मिल जाए। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कौन सी निशानी आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और हमें उन बंदों में शामिल कर ले जिनसे वो सच में राजी हो। आमीन।